Hello everyone, I welcome you all again in this video lecture. This is basically the sixth lecture. Okay, so this is basically the sixth lecture on the machining process, and in this lecture we are going to discuss about the geometry of a single point cutting tool and the tool signature. Okay, so before starting, I just want to tell you that for the better understanding of the single point cutting tool, geometry of a single point cutting tool, because there are different angles. It's just an exercise for you that you can take a rubber and the cutter so that at the end when you will see that there will be a single point cutting tool, so it will be good for you. Okay, so let's start. So first is the single point cutting tool geometry. To for the better understanding, what I'm doing is I'm considering this. Okay, this is a bar. Okay, and this is basically the duster, and I'm assuming that this is for this we are making a single point cutting tool, and like what I'm thinking that I'm for the better machining purpose I'm moving in this direction. Okay, because this is a complete the if you will see from the front side, it is completely a rectangular surface. Okay, so any two surfaces, either this side or this side, or we can do in this side as well. So I'm taking this side, and for this I'm just considering that we are moving in this direction, so the cutting surface or the cutting edge should formed on this surface. And like if we talks about the turning and the facing, so for the turning we can move in this direction. For the facing purpose, I'm assuming that we are moving in this direction. Okay, so if we are moving like this and this, it means that the cutting edges should be on first on this surface and another will be on this surface. Okay, so we are making the cutting edges on this. Okay, so we are making a single point cutting tool geometry. So for that, if we are moving in this direction, if I am assuming that this is the tool and from starting from here, so this is the end portion. Okay, so this is the end plane. Okay, or end surface you can also say. This is, and this is basically the side. Okay, you can take this one as well, but as I said, we are moving in this direction, so we need the cutting edge on on this plane. Okay, so this is the side and this is end. Okay, so in this figure, if you will see in this figure, then we are basically this is the end portion. Okay, and bottom one, this figure, this plane is basically the side plane. Okay, so what we are doing first is, if you will see from this side or the front view, then it will looks like this. Okay, it will be a rectangular. So what we are doing is we are assuming this as a side portion and this is as a end portion. Now for the uh, for that we have to remove the material of this tool. But why we are removing the material? Because like just assume that this is the this is the shaft. Okay, this is the turning is going on and this is a tool. So like if this tool is simple as it is, जैसा है वैसा का वैसे ही हम use कर रहे हैं, तो what will happen कि like if it is rotating and will bring the contact between the work and the tool, then what will happen, that whole surface of this tool will come in contact with the surface of the workpiece. Okay, but generally होना क्या चाहिए, एक cutting edge, because we are removing the material. For that a cutting edge is required. So इस केस में क्या हो रहा है कि now whole surface is coming in contact with this tool. So what will happen, uh, the excessive amount of the material will also remove from the tool surface, as well as the surface finishing at the end will not be satisfactory. Okay, so that's why we want to make the cutting edge. So abhi kya hai, ye pura ek surface se we are forming a cutting edge. Okay, so for that what we are doing is we are removing the material. Okay, so okay, so what we are doing is we are making the cutting edges in this side as well as in this side. Okay, that's why we are removing the material. So uh, okay, so this is the side portion. So what we are doing is this is the shank. Okay, complete, it is a shank, but we are assuming that on the 40% part of this shape we are making a single point cutting tool. Okay, so this is basically the shank. Okay,
नाउ यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक कुछ एंगल चूज करते हैं एंड ऑन दैट एंगल वी आर रिमूविंग द मटेरियल। लाइक एक हम इस तरह से एक प्लेन कर लेते हैं, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऑन द अपर साइड ऑफ दिस सरफेस, एंड वट एवर द मटीरियल इज देयर थ्रू आउट दिस विड्थ इफ वी आर एज्यूमिंग फ्रॉम दिस साइड, देन थ्रू आउट दिस वट एवर द मटीरियल इज देयर, ओके, ये जो पूरा मटीरियल है ये हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिकली साइड से, ठीक है। अब ये वाला जो एंड पोर्शन है इससे भी हम कुछ एंगल चूज कर लेते हैं। तो इससे मान लेते हैं कि ये एंगल हमने चूज कर लिया। सो दिस मटेरियल हैज टू बी रिमूव फ्रॉम दिस सरफेस अगेन थ्रू आउट दिस। अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं तो ये थ्रू आउट द विड्थ जो मटीरियल, ये जो आपका एंगल है, ये आपको मटेरियल रिमूव करना है, बट थ्रू आउट द विड्थ, तो ये जो पूरा मटेरियल है आपका ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, ये वाला मटेरियल आपका रिमूव हो गया। तो नाउ अब टूल क्या बचा है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, ये आपका टूल है। नाउ लेट्स मूव टू दी, सो दिस इज द साइड एंड दिस इज एंड। अब इसमें क्या है कि आप दो एंगल्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी। तो अगर मैं ये इसका टॉप व्यू था, ठीक है, अगर मैं आपका ये एक प्लेन बनाता हूँ या एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस हॉरिजॉन्टल प्लेन साइड साइड में, ठीक है, because this is side plane, so ये जो एंगल है we call this as a side cutting edge angle, this is CS, ओके। और अगर आपका ये पूरा एंड प्लेन था फ्रंट में, ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है दिस एंगल, दिस इज बेसिकली द CE, तो दिस इज एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। दो एंगल क्लियर हो गए, फर्स्ट इज साइड कटिंग एज एंड सेकंड इज एंड कटिंग एज। नाउ वी आर नाउ ये तो था आपका एक व्यू, ठीक है। अब इसको अगेन 3D में देखते हैं। तो ये बेसिकली इसका फ्रंट व्यू है, जो टॉप ये वाला जो व्यू है बेसिकली इट्स अ टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जो है आपको यहाँ से देखने पे मिल जाएगा, ठीक है। बट हम अभी उसको नहीं देख रहे हैं। ओके, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द फ्रंट व्यू, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट, अभी तो ये 3D है पूरा, बट फ्रंट व्यू अगर हम देखते हैं तो जब आप इस साइड से देखेंगे तो आपको ये पूरा एक रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, क्योंकि व्यूज होता है ना, व्यूज में आपको ये लाइंस नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो व्यूज होगा तो आपको क्या है, इसमें एक रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। अब हमारा जो ये वाला सरफेस है ये टॉप सरफेस है, ठीक है, ये वाली जो सरफेस है। नाउ अगर इस टॉप सरफेस को देखोगे एट दिस पोजीशन राइट नाउ, देन इट इज कंप्लीटली अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, ये जो सरफेस है टॉप सरफेस ये वाली, हम इसको बोलते हैं रेक सरफेस, ओके, और रेक फेस, ठीक है, रेक फेस बोलते हैं। नाउ रेक फेस का मतलब क्या है कि बेसिकली ये जो सरफेस है आपकी, ये जो टॉप सरफेस है, जब आप इस तरह से ये रोटेट होगा, इस तरह से जब ये रोटेट होगा और ये इस डायरेक्शन में जब टर्निंग होगी आपकी, तो जो मटेरियल रिमूव होता है दैट मटेरियल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द चिप्स। तो जो चिप्स हैं दैट विल फ्लो और दैट विल कम ओवर दिस सरफेस, मींस रेक फेस, ओके। नाउ जब ये रेक फेस पे आएगी तो अगर आपका ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, अगर आपका पूरा ये हॉरिजॉन्टल है, तो क्या होगा कि जो चिप्स हैं आपकी दैट इज एट वेरी हाई टेम्परेचर बिकॉज द हीट इज जनरेटेड। तो बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर जो चिप्स हैं आपकी दैट कैन बी मूव इन एनी डायरेक्शन, मींस इन एनी रैंडम डायरेक्शन। तो क्या हो सकता है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा आपका जो ये सरफेस है टूल सरफेस, तो इस पे पूरे पे मूव कर सकती है। नाउ व्हेन दे आर एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो इसको क्या होता है, एक चांसेस है कि देयर मे बी दे कैन बी वेल्ड और दे कैन बी प्री हीट दिस सरफेस। अगर इसको प्री हीट करेगा देन इट विल अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस टूल, ओके। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग ये जो फर्स्ट पोर्शन है आपका, ये जो रेक फेस है, ये जो ट्रायंगल ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, हम इसको क्या करते हैं कि इसको थोड़ा इंक्लाइन पोर्शन में रिमूव कर देते हैं। अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इनसाइड इंक्लाइन पोर्शन में हम लोग यहाँ से मटेरियल रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो एक्सेसिव अमाउंट ऊपर जो मटेरियल है ये पूरा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको इसका कहूँ तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि इस तरह से हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। इतना सा अगर हमें रिमूव करना है तो यहाँ से कटर रखिए और यहाँ से कटर रख के आप नीचे की तरफ चलाइए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपका एक स्लोप बन गया। अब ये जो स्लोप है इस मटेरियल को थ्रू आउट दिस विड्थ रिमूव्ड, ओके। तो अगर हम रिमूव करते हैं देन इट विल लुक्स लाइक दिस, ओके। नाउ एक्चुअली ये यहाँ पे इस तरह से था, नाउ द मटेरियल इज रिमूव्ड एंड इट इज लाइक दिस वन,
ओके। नाउ इसी में ये तो हो गया आपका तीसरा एंगल, ठीक है, दैट इज दो हो चुके हैं, तीसरा दैट इज इसको बोलते हैं हम लोग बैक रैक एंगल। ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये जो आपकी साइड है अगेन, जैसा आपने कि ये आपने मान लीजिए कि ये आपने क्या किया है कि एक इस तरह से आपने एक साइड लिया था और इसको मटेरियल को रिमूव किया था थ्रू आउट। ओके। नाउ अगर आप इसको देखेंगे तो अगेन पहले क्या थी, एक सरफेस थी, अब आपने मटेरियल रिमूव किया थ्रू आउट, तो अब क्या हुआ है कि अब एक नई सरफेस बन गई है विच इज एट सम एंगल। ओके। तो अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से सरफेस अगर बनी है, तो अगेन सॉरी, अगर इस तरह से सरफेस अगर बनी है, तो आपका अगर हम इसको इस तरह से मूव करेंगे, तो अगेन द होल सरफेस विल कम इन कांटेक्ट विद द वर्क पीस। अगेन आपका जो पर्पज था कि आपको क्या बनाना था, एक कटिंग एज बनाना था, बट कटिंग एज अभी भी बना नहीं है, ठीक है, आपने एक नई सरफेस बना दी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें अगर इसको एक कटिंग एज बनाना है, ठीक है, हमें ये वाला जो पोर्शन है, like, हमें इसको अगर कटिंग एज बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पर एक कटर रख के उसके बिलो साइड में, मीन्स टूवर्ड्स दैट सरफेस, ओके, वी हैव टू रिमूव द मटेरियल। सो अगर ये साइड है और साइड से आप साइड पूरी सरफेस को अंदर से रिमूव कर रहे हैं, देन जो एंगल मिलेगा दैट विल प्रोवाइड सम रिलीफ और दैट विल बी अ क्लियरेंस। ओके। तो हम उसको बोलते हैं आइदर, अगर साइड से है देन इट विल बी अ साइड रिलीफ एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल। नाउ सिमिलर क्या करना है हमें कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ये एंड प्लेन चूज किया था, तो और यहाँ पर इस तरह से प्लेन ड्रॉ किया था, प्लेन ड्रॉ मीन्स आपने मटेरियल को रिमूव किया था। अब अगर आपने ये मटेरियल रिमूव कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है कि अगेन देयर विल बी अ सरफेस दैट इज नॉट द कटिंग एज, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगेन आप कटर को यहाँ पे रखिए एंड मूव इनसाइड। जब आप इनसाइड मूव करेंगे देन द मटेरियल बिलो दैट एज विल रिमूव। अब जब आप इसको देखेंगे देन आपको यहाँ पे एक साइड कटिंग एज मिलेगी और यहाँ पर एक कटिंग एज मिलेगी, मीन्स कटिंग एज नाउ इज फॉर्म्ड। ओके। एंड अगर साइड में है तो हम उसको साइड कटिंग एज बोलेंगे, एंड में है तो हम उसको एंड कटिंग एज में एंड कटिंग एज बोलेंगे, ठीक है। नाउ सिमिलरली उसके नीचे जो आपका एंड है, उसके नीचे आपने एक रिलीफ प्रोवाइड कर दिया है, आपने एक क्लियरेंस प्रोवाइड कर दिया है। सो इफ इट इज इन एंड वी आर कॉलिंग इट एज अ एंड रिलीफ एंगल और एंड क्लियरेंस एंगल। अगर साइड में है तो साइड क्लियरेंस एंगल और साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो सरफेस है इस पे क्या करना है, इसको कटिंग एज कंसिडर करके टुवर्ड्स इनसाइड आपको मटेरियल रिमूव करना है। मान लेते हैं कि अगर आप इसको जब रिमूव करेंगे मटेरियल को, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, ये जो मटेरियल है आपका ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये आपका एंड साइड है, तो सिमिलरली एंड साइड में भी ऐसे ही करना है। जब आप दोनों साइड्स में ऐसा करेंगे तो ये तो आपका हो गया, ये तो हो गया आपका रेक एंगल, बैक रेक एंगल। जब आप इसको हॉरिजॉन्टल से मेजर करेंगे देन यू विल सी दैट दिस इज एंगल एंड दिस इज अल्फा बी, दैट इज बैक रेक एंगल। ओके। नाउ जब आप इसको ये मटेरियल यहाँ से मटेरियल को रिमूव करेंगे देन यू विल सी दिस वन। ओके। तो ये जो एंगल आपको दिखेगा, ये एंगल बेसिकली साइड का नहीं है, ये आपका एंड का है। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये प्लेन कैसा था, आपकी ये वाली जो सरफेस थी वहां पर प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, तब आप एंगल को देख रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसे हो चुका है, इट मींस दिस इज अ एंड क्लियरेंस एंगल, दिस इज नॉट द साइड क्लियरेंस एंगल, ठीक है। सो दिस एंगल इज बेसिकली एंड क्लियरेंस एंगल। मैं इसको गामा ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज नाउ, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, लाइक आपका टोटल इसमें देखिए आपका दो एंगल यहाँ हो चुके हैं, तीसरा ये हो चुका है, चौथा ये हो चुका है, पांचवा यहाँ पे बन चुका है ऑलरेडी, दैट इज साइड, बट वो यहाँ से नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके लिए हम एक एंगल और बना लेते हैं, देन विल गो फॉर द दैट वन। तो अब हमें क्या है, हमें बनाना है साइड रेक एंगल। उसकी जरूरत क्या है बेसिकली कि जब आपकी चिप्स फ्लो होंगी तो चिप्स इसके ऊपर फ्लो होंगी, और एक आपने चूंकि इसको इंक्लाइन पोर्शन बना दिया है, लाइक एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपकी जो यहाँ पे चिप फ्लो होंगी वो इस डायरेक्शन में मूव होंगी टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। अब टुवर्ड्स दिस साइड तो मूव हो रही हैं, बट टूल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी चिप्स यहाँ पे फ्लो कलेक्ट होती जाएंगी, अब कलेक्ट होती जाएंगी बिकॉज
आपको गिरने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, बिकॉज हाउ दे विल मूव आउट फ्रॉम दिस टूल, बिकॉज नाउ दिस इज अ कंप्लीटली अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मींस एक गली बन गई है यहाँ, ठीक है। आपका क्या है, एक पूरा थ्रू आउट अगर आप टूवर्ड्स इनसाइड देखेंगे तो एक पूरा आपका एक पोर्शन, एक इट्स अ काइंड ऑफ सम एंगल इज देयर। तो उसी में क्या होगा, आपकी चिप्स जो होंगी वो कलेक्ट होती जाएगी। अगर इस तरह से कलेक्ट होती जाती है, देन इट मींस अगेन द सेम कंडीशन, द हाई टेम्परेचर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू वेल्ड, और दे विल दिस मींस property will be change of this tool, okay। तो हमें क्या करना है कि we want that this जो chips आपकी flow हो रही हैं, that should not stay there, they will move out from this tool now। अगर मैं कटिंग इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो आई व्हाट आई वांट इज कि आपकी जो चिप है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में कटिंग हो रही है तो चिप इस डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए टूल से। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट मेरा बन चुका है, इस पॉइंट से क्या करता हूं, मैं इंक्लाइन पोर्शन बनाता हूं, ठीक है। अब इससे जब इंक्लाइन बनाऊंगा, तो पूरा जो मटेरियल है, एक पेन से मार्क कर दीजिए रबर पे, एंड इससे इस तरह से पूरा मटेरियल जो है, जितना आपका ये वाला जहां तक ये वाला पॉइंट है, इससे आप क्या करिए, इस तरह से एक सॉरी, इस तरह से आप टूल रखे, ठीक है, और उसको बैक साइड में नीचे की तरफ ले जाइए, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर आपने टूल रखा है, सो मूव लाइक दिस, ओके। इस तरह से मूव करेंगे तो आपको एक नया एंगल मिलेगा, दैट इज बेसिकली दी साइड रेक एंगल। अगर आप इस फिगर को और इस फिगर को कंपेयर करेंगे, देन यू कैन सी दैट, ठीक है। आपका ये वाला जो पोर्शन है, जब आप इसको इंक्लाइन करेंगे तो आपका इस तरह से कुछ आ चुका होगा, मीन्स ये जो मटेरियल है आपका, ये इस सरफेस से रिमूव हो चुका है, सो दिस विल लुक्स लाइक दिस, ओके। नाउ अब ये जो दो एंगल हैं, विच इज यहाँ पे जो आपका साइड क्लियरेंस एंगल था, और यहाँ पे जो आपका अल्फा एस है, दैट इज साइड रेक एंगल। आपको क्या है कि देखिए, ये आपका टॉप व्यू हो चुका है, ये आपका फ्रंट व्यू हो चुका है, नाउ वी हैव टू मूव इन द साइड व्यू। तो जब आप इस साइड व्यू देखेंगे तब आपको ये प्रॉपरली दिखेगा नहीं, रीजन कि आपका ये पॉइंट बीच में आ रहा है, और ये जो है आपका जो इंक्लाइन पोर्शन है वो उसके बैक साइड में है, ठीक है। आपको उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक प्लेन बना दीजिए, और उस प्लेन को क्या करिए कि इस रबर को पूरा यहाँ से कट कर लीजिए। जब आप इसको कट करेंगे तो अब हमें क्या है कि ये जो क्रॉस सेक्शन बना है, ये जो क्रॉस सेक्शन बना है इधर वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का, उसको हमें देखना है फ्रॉम दिस साइड, ओके। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से अगर ये एंगल नहीं दिख रहा था, तो आप सिंपली इधर भी मूव कर सकते थे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर नहीं दिख रहा है तो आप राइट हैंड साइड में मूव कर सकते थे, बट अगर आप राइट हैंड साइड से अगर इसको देखेंगे तो आपकी ये वाली सरफेस जो है वो बीच में आएगी, ठीक है। अगर ये सरफेस बीच में आती है तो अगेन आपको जो ज्योमेट्री दिखनी है वो नहीं दिखेगी, मतलब जो एंगल दिखना है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको कट कर लिया। नाउ व्हेन यू विल सी, जब आप इसको कट करेंगे तो ये आपका हाँ, तो ये वाला आपका ये क्रॉस सेक्शन आपका दिखेगा, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन के लिए ये वाला क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो ये तो आपका टिप हो गया। नाउ अब जब आप इसको हॉरिजॉन्टल से देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो आपको एक एंगल दिखेगा, दिस वन, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द साइड रेक एंगल, क्योंकि आपका रेक फेस है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये आपका साइड वाला पोर्शन है बेसिकली। तो साइड से जो एंगल आपको दिखेगा, दिस इज गामा एस, दैट इज साइड क्लियरेंस एंगल। तो ये आपके टोटल 6 एंगल हो गए। नाउ ये आपका था टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू, एंड दिस इज साइड व्यू। हम इसको एक बार सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू विल बी लाइक दिस, ठीक है। आप भले ही आपने कर्व नहीं बनाया कोई बात नहीं, बट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू विल बी लाइक दिस, ठीक है। साइड व्यू जो है आपका, दिस विल बी योर साइड व्यू, ठीक है।
तो देखिए, ये जो एंगल है, जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको ये जो एंगल दिखेगा, दिस इज अल्फा बी, विच इज बैकरेक एंगल। ये जो एंगल है आपका एंड कटिंग से है, क्योंकि आपका ये एंड प्लेन में है। तो आपको जो ये एंगल दिखेगा, दिस इज गामा ई, दैट इज एंड क्लियरेंस एंगल। ठीक है, ये एंड प्लेन है आपका। तो यहाँ से जो ये एंगल है, दिस इज सी ई, दैट इज एंड कटिंग एज एंगल। और ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल इज सी एस, क्योंकि ये आपका साइड प्लेन है। ठीक है, तो दिस इज सी एस, साइड कटिंग एज एंगल। नाउ आपका ये एंड था, दिस इज साइड। ओके, so this will be the gamma s, this is clearance angle, side clearance angle, और ये जो portion है, this is with respect to horizontal, so this is alpha s। ठीक है, so this will be the 6 एंगल टोटल। ओके, तो ये आपको टोटल 6 एंगल है जो आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाने के बाद टोटली वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन सी इन दैट, ऑब्जर्व इन दैट। ओके, सो लेट्स, नेक्स्ट इज टूल सिग्नेचर। नाउ टूल सिग्नेचर, क्या मतलब होता है टूल सिग्नेचर का, कि लाइक देर आर, एज यू नो दैट देर आर 6 एंगल्स। ओके, तो हम उन एंगल को जब मीजर करते हैं, नाउ वी कैन मीजर विद लाइक ओब्लिक कटिंग भी होती है और ऑर्थोगोनल कटिंग भी होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम किस ऑर्डर में इन एंगल्स को प्लेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी टूल को देखेंगे या फिर आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑर्डर करेंगे, ठीक है, फॉर परचेज करेंगे, तो आपको उसमें एज पर एएसए और ओआरएस आपको एक सिग्नेचर दिया रहेगा, मींस ऑर्डर दिया रहेगा कि दिस इज द एंगल, लाइक 8 डिग्री, 6 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, लाइक दैट। ओके, सो वी हैव टू बी थिंक कि हमें उसमें अल्फा बी कितना है, अल्फा एस कितना है, गामा एस, गामा ई कितना है। ठीक है, दैट वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। सो as per ASS system, American Standard Association, and as per the orthogonal rake system, there are two systems through which we can define this tool signature. तो अगर हम ASA की बात करते हैं, तो आपका जो अभी हमने 6 एंगल कंसिडर किए हैं, वही इसमें आएंगे, बट टोटल इसमें 7 पैरामीटर्स होते हैं टूल सिग्नेचर में। 6 आर एंगल एंड 1 इज नोज रेडियस। ठीक है, तो अगर हम ASA की बात करते हैं, तो इसका जो ऑर्डर रहेगा, दैट इज अल्फा बी, अल्फा एस, गामा ई, गामा एस, सीई, सी एस एंड आर। ठीक है, अल्फा बी बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल एंड द नोज रेडियस। देखिए, लिखे सब एक ही लाइन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब की यूनिट सेम है। आपके ये सारे क्या है, एंगल हैं, तो ये एंगल जो है आपके डिग्री में कैलकुलेट होंगे। ठीक है, और ये जो आपकी आर है, दैट इज नोज रेडियस। ठीक है, इस नोज रेडियस को या तो इंच में कैलकुलेट करते हैं या फिर एमएम में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो प्लीज कीप इन माइंड दिस ऑर्डर। और इसको याद करने का सिंपल सा एक ट्रिक भी है कि साइड जो है, आपके टोटल 6 एंगल्स तो हैं, रेक फेस में आपके 2 एंगल हैं, क्लियरेंस में आपके 2 हैं, कटिंग एज में आपके 2 हैं, तो हमेशा सबकी जो साइड होगी वो लास्ट में आएगी। दिस इज अ कॉमन ट्रिक टू रिमेंबर दिस ऑर्डर। ओके, नाउ हम ओआरएस की बात करते हैं। देखिए, ओके, ओआरएस में क्या है, आपका सेम ऑर्डर है, मीन्स सिमिलर ऑर्डर लाइक, बट इसमें क्या है कि आपके जो एंगल है वो चेंज है। अब ये चेंज कैसे हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में एक बार देखते हैं, बट इसका ऑर्डर क्या है, दैट इज फर्स्ट इज आई, दैट इज इंक्लिनेशन एंगल, अल्फा नोट, दैट इज बेकरेक एंगल, देन आपका गामा नोट, दैट इज, सॉरी, ऑर्थोगोनल रेक एंगल, दिस इज ऑर्थोगोनल क्लियरेंस एंगल, this is auxiliary clearance angle, then it is C, that is principal cutting edge angle, and then it is lambda. Okay, then it is lambda is basically the approach angle. ठीक है, और then R radius। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आप सिंपल सा इनको एएसए सिस्टम और ओआरएसओ सिस्टम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो गामा ई है दैट इज इक्वल टू गामा ओ, या गामा एस जो है दैट इज गामा ए, सी जो है दैट इज सी है आपका। तो ये जो है आपका आई इज द इंक्लिनेशन एंगल। नाउ इंक्लिनेशन एंगल डिपेंड करता है कि अगर आपका ऑर्थोगोनल कटिंग है तो आई जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, ओब्लिक कटिंग जो है दैट इज आई इज नॉट इक्वल टू 0। ओब्लिक का मतलब क्या होता है कि एट सम एंगल वी आर कटिंग द वर्क पीस। ओके, तो आई oblique cutting is not equal to 0, for orthogonal it is equal to 0। Okay, alpha naught is basically the orthogonal rake angle, this is orthogonal
clearance angle, this is auxiliary clearance angle, this is basically the principal cutting edge angle, and this is lambda, that is approach angle. Okay, ओके, अप्रोच एंगल। नाउ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे सी एस से, बिकॉज यहाँ पे आपका सी एस है ए एस ए सिस्टम में, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस सी एस। ओके, तो जो आपका एंगल है दैट इज लेमडा। आर अगेन नोज रेडियस है, आप इसको इंच में या फिर एमएम में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका डिटेल देखते हैं एक बार कि बेसिकली ये एंगल्स हैं क्या। ओके, नाउ ओ आर एस, ये जो है आपका फर्स्ट, दिस सिस्टम इज ए एस ए and this is ORS. ठीक है, ये basically this figure I have taken from this P.N. Rao book volume 2 on the metal cutting. ठीक है, so you can go through that. Now अगर आप इसको देखेंगे, ये आपका एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री टूल है। ठीक है, तो बेस फर्स्ट जिसमें आपका ये टूल रखा हुआ है विच इज अ बेस प्लेन। ओके, towards this longitudinal means हम इसको longitudinal मान रहे हैं, so this is basically the longitudinal plane and perpendicular to that transverse plane in the transfer direction. Okay, so these are three angles. Now we are measuring, like आप एक टर्निंग का एग्जांपल ले लेते हैं, और टर्निंग में क्या है, हम टूल को जैसे टर्निंग हो रही है, टर्निंग हो रही तो हम टूल को इस तरह से रखते हैं। तो ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल, ये जो एंगल है दिस इज सी एस। ओके, दिस इज साइड कटिंग एज एंगल। ये जो एंगल है दिस इज एंड कटिंग एज एंगल, दिस इज सीई। ठीक है, जब आपका एज हमने फिगर देख चुके हैं ऑलरेडी, अभी जो बनाए थे, लाइक ये जो एंगल है दिस इज आपका ये एंड प्लेन है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है दिस इज गामा ई। बाय द वे यहाँ से फाई ई से रिप्रेजेंट है, जस्ट ट्राई टू अज्यूम दैट गामा ई। okay, so this is and clearance angle, this is alpha b which is a back rack angle, और horizontal के साथ जब आप side view देखेंगे this will be alpha s side rack angle, and this is gamma s, so this is side clearance angle। ठीक है, तो this is basically the ASA system, and when you will compare the ORS system, तो ORS system में difference क्या आ जाता है कि like ये जो plane है आपका ट्रांसफर प्लेन, अब ट्रांसफर प्लेन को क्या है कि पहले आप इसके रेस्पेक्ट में ले रहे थे, अब आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इसके रेस्पेक्ट में ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ कटिंग एज एंगल बनाया है ना, तो इसमें क्या किया है कि इसमें इसको रोटेट कर दिया है। नाउ दिस इज बेसिकली द कटिंग एज। ओके, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कटिंग प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू दैट दैट इज अ ऑर्थोगोनल प्लेन जिसमें आपका एंड पोर्शन है। ठीक है, नाउ सिंपल दैट इज अ बेस प्लेन जिसमें आपका रखा हुआ है। नाउ सिंपल सिमिलरली फॉर दिस टर्निंग पर्पज, ये जो एंगल है आपका, क्योंकि आपका ये कटिंग प्लेन है, मींस जो कटिंग एज है, दिस एंगल इज बेसिकली लेम्डा। ओके, दिस इज अप्रोच एंगल, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि अगर हम इसको सी एस बोल रहे थे एएसएस सिस्टम में, तो ये लेम्डा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस सी एस। ठीक है, ये जो एंगल है आपका दिस इज ये आपका ऑर्थोगोनल प्लेन है, और ऑर्थोगोनल मींस ऑर्थोगोनल प्लेन के पैरेलल। ठीक है, दिस इज योर ऑर्थोगोनल प्लेन इन दिस साइड, तो उससे जो एंगल है, ओके, सो दिस इज बेसिकली अल्फा नोट। ओके, नाउ ये वाला जो एंगल है दिस इज कटिंग प्लेन। ओके, सो दिस एंगल इज बेसिकली गामा, क्योंकि देखिए आपका ये जो एंगल है, this angle is basically this is C because that is a principal cutting edge angle। ठीक है, और ये जो एंगल है दिस इज एंड कटिंग एज। अगर मान लीजिए कि आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि गामा ई जो है दिस इज, यहाँ पे आपका क्या था एएसए सिस्टम में गामा ई था, और यहाँ पर क्या है आपका ऑर्थोगोनल से आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑर्थोगोनल है, और चूंकि ऑर्थोगोनल से अगर आपका एंगल बनता तो इस तरह का कुछ बनता है इस वाले में। ठीक है, तो बट यहाँ पर क्या है कि गामा ओ जो है आपको कुछ नहीं दिया है, मीन्स यहाँ पे पूरा इस तरह से बनाया हुआ है, इसका मतलब गामा ओ की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 0 है, और ये क्या है आपका ऑक्सिलरी प्लेन। ठीक है, दैट इज कटिंग प्लेन, सो उसके साथ जो एंगल बनेगा दैट इज गामा ए, दैट इज ऑक्सिलरी एंगल, ऑक्सिलरी क्लियरेंस एंगल। अब इंक्लिनेशन एंगल जो है दिस इज योर इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, इनिशियली मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेन था, अगर आप ऐसे सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो आपका ये जो प्लेन है दिस इज बेसिकली दी ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, अब उस ट्रांसफर प्लेन को क्या कर दिया है कि आपने कुछ इंक्लाइन कर दिया है, सो नाउ दिस इज बेसिकली द कटिंग प्लेन। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है दिस इज बेसिकली कटिंग प्लेन। नाउ इंक्लिनेशन है। अब अगर ऑर्थोगोनल की बात करते हैं तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0।
मतलब यही आपका क्या होगा यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन है दिस इज बेसिकली द ऑर्थोगोनल प्लेन एंड आई इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस आपको यहाँ से आई की वैल्यू मेजर करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट विल बी द ऑब्लिक कटिंग, ओके। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइस।